such as C or C++ or Java or Python, he need not have to learn any programming language in order for him to uh, write an algorithm. An algorithm, an algorithm, okay, is written mostly in English or English-like language, whereas a program is written in a programming language. In order for you to write a program in a program, you need to learn at least one programming language. You should know one programming language to write a program. However, to write an algorithm, you need not know any programming language. Your mathematics teacher need not know any programming language. Still, he shall be able to write an algorithm. Okay. So first of all, I would like to tell you, why is it necessary to write a program? What happens if I do not write a program? Okay. See, a computer, why programming? Let me try to answer to this particular question. See, a computer is a dumb machine. It simply follows whatever you ask the computer to follow, it simply follows your instructions. Okay. It is not only necessary for you to tell what the problem is, but you should also tell how that problem should be solved. For this, let me take a very simple example. In between, I try to use Hindi, but I'm not so good at Hindi because you people, when I was speaking to Imran sir yesterday, he said that sometimes बीच में कभी-कभी आप हिंदी भी बात किया कीजिए sir. That's what he said. So I try to use Hindi in between. So say for example, you take a servant to do your jobs at home. Okay, काम वालों को आप काम के लिए ले रहे हो. Let us assume that he doesn't have any intelligence at all. वो कुछ समझ में नहीं आता है उसको. अभी आप सोचो, you are asking him to clean the room. He doesn't know what cleaning is. उसको पता नहीं है cleaning क्या होता है, cleaning क्या चीज है. Because he lacks intelligence. Okay, you have to make him understand what cleaning is. Cleaning ये होता है, आप झाड़ू लाना है पहले, बाद में बेंड करना है, बेंड करके आप ओके हॉरिजॉन्टली उसको फ्लोर के ऊपर स्वीप करना है. What again you have to tell what sweeping is, and you have to collect all dust at one place, then collect the dust and throw it in the dustbin. Come back with the okay, empty the dustbin in the nearest dustbin near your house. Come back with the dustbin. You have to tell each and every instructions to make him understand what cleaning is. If you just tell him the problem, that is clean करो बोलने से उसको पता नहीं चलेगा. You have to not only tell what the problem is, you should also tell how that problem should be solved. Okay, you should not only tell what the problem is, but you must also tell problem क्या है. उसको सिर्फ उतना बताने से okay उसको समझ में नहीं आएगा. You have to make him understand and you must also tell him how that problem should be solved. Your computer is like that particular type of servant. Okay, he is very obedient. He will do whatever you ask him to do, provided you tell him how that has to be done. Likewise, कंप्यूटर को भी बताना चाहिए कि कंप्यूटर भैया आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो. Yes, find the square root. Computer, find the square root. बताने से it cannot. Okay, it doesn't know what square root means. You should not only tell the problem, but you must also tell how that problem should be solved. So therefore, you are required to provide these instructions. You are providing in the form of a program. So you write all these instructions. Okay, झाड़ू लावो, bend करो, sweep करो, collect करो dust को. So these you can consider as the instructions, and you have to write that in the form of a program. So in order to make the computer understand how that problem should be solved, okay, you have to write the instructions in the form of a program. In order to write a program, you need to know a programming language. Now you can ask me, sir, इतना कंप्यूटर को बता के समझा के कंप्यूटर से काम लेने से हमको क्या फायदा?
So what is the use? Why we have to make the computer solve our problems? Because computer can solve problems at a very fast rate, okay? And the answers given by computers are always accurate. Unlike when we are solving the problems ourselves, we cannot expect accurate results every time. So instead, if we are getting the help of a computer, if we can take the pain of writing the program and make the computer solve our problem, then we can always expect accurate results. Okay, we can get the job done at a very small amount of time. So all these advantages are there, and we are not supposed to tell okay, these instructions every time I want cleaning to be done. I did not have to provide these instructions every time. ओके, आई विल बी राइटिंग द प्रोग्राम ओनली वंस. हम वो आदमी को सिर्फ एक बार बता देने से वो काफी है. क्लीनिंग क्या होता है, ओके, वो प्रोसीजर क्या है, क्लीन करने का प्रोसीजर क्या है. इफ सपोज आई टेल दिस प्रोसीजर ओनली वंस, दैट इज एनफ. So that is why we are required to write programs in order to make the computer understand. Okay, you have to write what is called as a program. And to write a program, you need to know at least one programming language. आपको समझ में आना चाहिए. So programming languages are of two types. First one is high level language. Second one is low level language. What do you mean by high level language? I have seen people writing answers like it is more than 2 decades. So they keep writing funny answers like a language which is at a higher place is high level language. Language which is at a lower place is called low level language. Okay, that is not the way you are supposed to write your answers. They try to extract the answer from the question. Question से ही answer को ढूंढ लेते हैं सब लोग. आपके जगह में कैसा है पता नहीं है हमको. So इमरान सर से बाद में पूछूंगा. So what do you mean by a high level language? Suppose आप high level language use करके प्रोग्राम लिख रहे हो, समझो. सो ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, दे आर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, वी शुड नो वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो ले रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज हो सकता है और इट कैन बी ए लो लेवल लैंग्वेज आल्सो. व्हेन वी आर राइटिंग ए प्रोग्राम यूजिंग ए हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके, मैं सोचो प्रोग्राम एक लिख रहा हूं, I need not have to bother about what configuration of the system that you have at your place. What is the configuration of the system that you have at your place? वो CPU कौन सी CPU है, उसका स्पीड क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है. I need not have to know anything. अभी सोचो इमरान सर बोर्ड के ऊपर C प्रोग्राम लिख रहे हैं. सोचो, he need not have to know what configuration of systems you people have. Okay, he will simply bother about solving the problem. एक सोचो say problem he has written multiplication of 2 matrices program, वो बोर्ड के ऊपर लिखा है. Okay, and he will ask you to copy it down. You can execute this program on any of your systems having any of the configuration. आप किसी भी कंप्यूटर में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उस कंप्यूटर में आप वो प्रोग्राम को, वो सिंगल प्रोग्राम को आप सब लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर टाइपिंग द प्रोग्राम प्रॉपरली. ओके, सो यू ऑल कैन गेट रिजल्ट्स. सो सच ए लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ए हाई लेवल लैंग्वेज. whereas low level language क्या होता है, that is system dependent. See, high level language is system independent. मतलब so हर कंप्यूटर में वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम. But a program which is written in a low level language, there are actually 2 types of low level language, namely assembly language and machine language. They are considered as the 2 types of low level language. So हम प्रोग्राम को low level language में, we can never write a program directly in machine language. ये machine language में हम directly program कभी नहीं लिखेंगे नहीं. So लिखेंगे तो we will be writing the program in assembly language. ये assembly language में क्या होता है, we will be writing the instructions in the form of mnemonics, मतलब symbolical. Say for example, we have an instruction like move, move A, B, something like that.
say there is an instruction like mov a comma b. So meaning move the contents of b into a. Okay, so that is the meaning. So you are the instructions in the form of mnemonics. That's called a low-level language. That's a assembly language. Assembly language is one of the low-level languages. So क्या होता है? If suppose I am writing a program using assembly language, each computer has what is called as one important part of computer is CPU, central processing unit. That I can simply call it as a processor. That processor, every processor that is used in a computer has a specific instruction set. हर processor का एक subset होता है. So if suppose I am writing a program for, say, let us assume there is a processor called 8086. एक मेरा कंप्यूटर में assume there is a processor called 8086. मैं मेरा कंप्यूटर के लिए मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं तो I have to चुनना पड़ता है. मैं वो इंस्ट्रक्शन सेट से मैं एक एक इंस्ट्रक्शन को चुन के I have to write the program. And this program can be executed only on a system that has 8086 processor. वो दूसरे कंप्यूटर में वो एग्जीक्यूट हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि दूसरा प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं सकते हैं. So those programs, okay, which are written in assembly language are system dependent. Low level language programs क्या होता है? System dependent होता है. However, so which one is better? Whether the program written in high level language is better or a program written in low level language is better? It is always better to have programs written in high level language. क्योंकि okay, without being bothered about what is the configuration of the user, I shall be simply writing the program on the board. You shall be taking the program on in your notes, and you shall be able to execute them on all of your systems. So it is always a good idea to write programs in high level language. So high level language में लिखना होता है. So assembly language क्या होता है? Assembly language में whenever we are writing program, we are writing programs in what are called as mnemonics. Mnemonics are symbolic instructions हम लिखेंगे assembly language में. So ये next is machine language. ये machine language क्या होता है बाद में देखेंगे. So first program को high level language में लिख सकते हैं. What are the different examples for high level language? We have C, C++, Java, Python. All these are considered as high level languages. Assembly language, okay, is say 8085, 8086. We have different processors. For every processor, there is a separate language. So we have what are called as assembly languages, and we have high level languages. So which of these two is better? It is always better to have high level languages. क्योंकि हम high level languages को use करके हम we shall be if we are writing the programs, the users will be able to execute them on any systems that they have and whatever configurations their systems have. So in all of those systems, we shall be able to execute the programs. Okay. Now, let us assume there are two people who have written same problem. Okay, say both of them are solving the same problem. Addition of two numbers. Addition of two numbers करने के लिए दो बंदों को मैं बताया हूं कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए एक बंदा लिखा है प्रोग्राम को C में और एक बंदा लिखा है प्रोग्राम को 8086 में. Okay, so which of these two programs is better understood by the computer? ये प्रोग्राम एक बंदा लिखा है. One student has written the program in C language. The other one has written the program in assembly language. So which of these two programs इन दोनों में से किस प्रोग्राम को कंप्यूटर अच्छी तरह से समझ सकता है? Can somebody answer? Unmute करके कोई एक अनम्यूट करके मुझे आंसर दे सकते हैं. सर सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज का प्रोग्राम ठीक से समझ में आएगा. आर्यन भाई ऐसा बोल रहा है. तो दूसरा कोई है क्या? तो इनका बात कोई नहीं आने के लिए. हाँ,
C language. Is there anybody? Which program? C program ही ठीक से समझ में आएगा कंप्यूटर को। ऐसा बताने वाले सब लोग Assembly ऐसा ही language. बता रहे हैं या सी लैंग्वेज? सो मैं बताता हूँ, हाँ, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी समझेगा, लेकिन वो लैंग्वेज भी कोड में डाल देता है सर, मशीन लेवल लैंग्वेज में ही उसको कन्वर्ट करता है, तब मशीन समझ पाता है उस चीज को। सर मैं असेंबली लैंग्वेज मेरा भी क्वेश्चन समझेगा, था, बट वो सिस्टम yes, डिपेंडेंट है। ओके, 1 सेकेंड। देखो, एक बंदा प्रोग्राम सी में लिखा है, दूसरा बंदा लिखा है असेंबली लैंग्वेज में। ये दोनों लैंग्वेज कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा। कंप्यूटर कैन नाइदर अंडरस्टैंड ए हाई लेवल लैंग्वेज नॉर कैन अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। The one and the only language which a computer can understand is the machine language. Okay. The one and the only language which a computer can understand is the machine language को ही समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है? 0s and 1s में रहना चाहिए। जो भी प्रोग्राम है वो सी में है या असेंबली लैंग्वेज में है, वो दोनों प्रोग्राम को हम पहले, आप सी लैब में जो भी गए हो, आप लोग एग्जीक्यूट करने से पहले यू वुड हैव कंपाइल्ड द प्रोग्राम, है ना? कंपाइल का मतलब क्या है? एक्चुअली ट्रांसलेशन होता है। ओके, बैकग्राउंड में वो प्रोग्राम जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हो, that it cannot be, समझ नहीं पाता है कंप्यूटर, so you have to make your program understandable to the machine, understandable to the computer. so इसके लिए हम क्या करते हैं? उसको ट्रांसलेशन करते हैं। ओके, सो ट्रांसलेशन करना जरूरी है। नाइदर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम समझ में आएगा कंप्यूटर को, नॉर असेंबली लैंग्वेज में जो लिखा है वो भी समझ में नहीं आएगा कंप्यूटर को। सो कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज पता है, वो लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में हर इंस्ट्रक्शन, जो भी छोटा इंस्ट्रक्शन हो, सोचो से फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू A प्लस B है, उतना छोटा इंस्ट्रक्शन को भी आप 20-30 जीरोस एंड वंस एक ऑर्डर में लिखना पड़ता है। 0 और 1 एक ही ऑर्डर में 30 या 40 जीरोस एंड वंस को, इतना छोटा इंस्ट्रक्शन को भी इतना आप जीरोस एंड वंस में कन्वर्शन करना पड़ता है। इसीलिए हम वी विल नॉट बी राइटिंग, उसमें लिखना और भी मुश्किल हो जाएगा। सो डायरेक्टली राइटिंग प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम क्या करते हैं? आसानी से हम प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिख देते हैं या असेंबली लैंग्वेज में लिख देते हैं। सो बाद में हम वी यूज व्हाट आर कॉल्ड एज ट्रांसलेटर्स यूज करके वो प्रोग्राम्स को हम ट्रांसलेशन मशीन लैंग्वेज में कर सकते हैं। So they are called as translators. So we have 3 types of translators. Okay, namely we have compiler, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ये 3 लैंग्वेज, ये 3 तरह का ट्रांसलेटर्स होता है। तो फर्स्ट टू व्हाट एवर वी हैव, कैन यू ऑल सी व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन? सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों चीज, ओके, लास्ट वन को छोड़ के, असेंबलर को छोड़ के, ये फर्स्ट टू translators, namely compiler and interpreter, both of them are used to translate high level language programs को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए हम ये फर्स्ट 2 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं। और प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज जैसा 8085, 8086, सो वो प्रोग्राम्स को हम मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए we use what is called as an assembler. So हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को बदलने के लिए, मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए हमको 2 ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। एंड प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में जो लिखा गया है वो प्रोग्राम्स को हम मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर यूज करते हैं। सो नाउ लेट अस नाउ लुक एट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सर असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को बदलने के लिए 2 है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों इनपुट क्या लेता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, दोनों का आउटपुट क्या है? मशीन लैंग्वेज ही है। तो हमको 2 क्यों है? ओके, सो व्हाई वी हैव टू, both of them are doing what are called as
both of them are doing what are called as both of them are doing what are called as same job. Both of them are translating high level language programs into machine language. So there should be some difference. दोनों काम एक ही है. दोनों programs, दोनों compiler और assembler, interpreter, they both translate high level language program into machine language. Then what is the difference between them? The way they do the job, दोनों काम एक ही करता है, but तरीका, okay, the way they do this particular job is different. See, in case of compiler, पूरा program जो होता है, मेरा पूरा जो program है, वो एक shot में translation हो जाता है. मेरा पूरा program एक shot में translation हो जाता है. में वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन बाद में चलता है. सो ट्रांसलेशन फर्स्ट फेज में चलता है, एग्जीक्यूशन सेकंड फेज में चलता है. कहाँ? इन केस ऑफ कंपाइलर. बट इन केस ऑफ इंटरप्रेटर ऐसा नहीं होगा. इट विल बी डन, माय एंटायर प्रोग्राम इज नॉट ट्रांसलेटेड इन वन शॉट. ओके, इट इज डन लाइन बाय लाइन. फर्स्ट लाइन ऑफ माय प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड. सो जो मैं जो भी बता रहा हूं आपको, आप समझ गए सोचो, तो आप simply will you keep quiet, you will start responding. The moment you understand something, you will start responding. है ना? मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो जो भी बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, तो आप ऐसा स्टिफ आपका सर ऐसा स्टिफ रखेंगे क्या? नहीं. You will start doing like this, right? Nodding your head like this. That means you are understanding something. Likewise, अभी क्या हो रहा है? फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम ट्रांसलेशन हो गया, इसमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो गया, तो कंप्यूटर चुप बैठेगा क्या? इट विल स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. सो क्या होगा? फर्स्ट लाइन ट्रांसलेशन होगा मशीन लैंग्वेज में, इमीडिएटली वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा. सेकेंड लाइन ट्रांसलेशन, second line execution, third line translation, third line execution, and so on. So दोनों translation और execution दोनों साथ साथ चलेगा. किसमें? interpreter में. However, in case of compiler, entire job is done. Translation एक phase में हो जाएगा, पूरा program को एक बार translation कर देगा, बाद में execution करेगा. ओके, यहाँ इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होगा. सो नाउ यू टेल मी, विच ऑफ दीज टू इज बेटर? कंपाइलर ये बेटर है क्या, या इंटरप्रेटर बेटर है क्या? दोनों का काम एक ही है. तरीका अलग अलग अभी बताया मैंने. सो विच ऑफ दीज टू इंटरप्रेटर इज फास्टर अकॉर्डिंग टू यू? राज? Yes, sir. Okay, let me give one example. I ask two of your friends to get me water. भैया कोई पानी लाओ, मैं पूछता हूँ, दो आदमी को बताता हूँ. एक राज लाएगा पानी एक गिलास में पानी लाएगा राज, और एक उसका जो फ्रेंड है, so he will get me water in one full bottle में पानी लाएगा, बातिल में पानी लाएगा दूसरा उसका फ्रेंड, राज का फ्रेंड, और राज लाएगा ग्लास में. ओके, सो इफ सपोज नाउ राज इज लाइक इंटरप्रेटर, हिज फ्रेंड इज लाइक कंपाइलर. इफ सपोज मेरा बुझ गया, सोचो प्यास जो हो रहा है मुझे, वो कब से बुझ गया, प्रॉब्लम नहीं है राज को. इफ सपोज साउंड कट रही है Yes. सर. सर आपका आवाज नहीं आ Are you पा able रहा to- सर. नहीं सर, अभी नहीं मिल रहा Clear, sir. आवाज आपका. ब्रेक हो रही है. Can you hear me now? यस आवाज सर, आ रहा है क्या? अब आ Yes, sir, रही है yes. सर. हाँ?
यस Yes, सर, अब sir. आ रही हाँ है। मैं फिर अभी रही है। थोड़ा यस सर। अंतराल हुआ होगा, ऐसा यदि है तो बता दीजिए। थोड़ा नेटवर्क सिग्नल कब कुछ डाउनग्रेड हुआ है तो ऐसा हुआ होगा। ओके, so I ask Raj and his friend to get me water. Raj gets me water in one glass while his friend gets me water in one full bottle. Which of those two is faster? जो बॉटल में लाया है पानी वो फास्ट है, क्योंकि पानी लाना कितना बार कर रहा है? एक बार कर रहा है। पूरा बॉटल 2 लीटर बॉटल में वो पानी लाया है। सो मेरा एक कप से मेरा प्यास नहीं बुझा है तो ही इज रेडी टू पोर सेकेंड कप। ओके, और तीसरा कप भी डालने के लिए उसमें पानी है, तो वो जाके पानी लाना कितना बार कर रहा है? बार कर, बॉटल में लाया है तो वो जाने का आने का कितना बार, हाउ मेनी टाइम्स ही इज गोइंग एंड कमिंग टू गेट मी वाटर? ओनली वंस ही इज गोइंग। हाउएवर राज में हर बार मैं मांगता हूं उसे पानी, वो हर बार जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए, जाके आना पड़ेगा। सो हु इज फास्टर एंड हु इज स्लोयर? राज इज नॉट फास्टर। सी, इंटरप्रेटर इज लाइक राज, इट इज डूइंग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। एक लाइन को ट्रांसलेशन करेगा एंड इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूशन करेगा। कंपाइलर इज लाइक हिज फ्रेंड, राज फ्रेंड, राज भाई का दोस्त है कौन? कंपाइलर। वो कितना बार कर रहा है पानी लाने का काम? एक ही बार कर रहा है। सो कंपाइलर इज फास्टर कंपेयर्ड टू इंटरप्रेटर। कंपाइलर इज फास्टर compared to interpreter। तो दोनों ओके, राज और उनका दोस्त दोनों दे आर ट्राइंग टू गेट मी वाटर, दोनों का काम एक ही है, बट हाउ द वर्क इज बीइंग डन इज डिफरेंट। ओके, इन केस ऑफ कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार में ट्रांसलेशन हो जाएगा, नेक्स्ट फेज में एग्जीक्यूशन होगा। इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट लाइन ट्रांसलेशन होगा, इसमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड, द मोमेंट इट इज ट्रांसलेटेड, ओके, वो ट्रांसलेशन हो जाने के बाद वो चुप नहीं बैठ सकता। कंप्यूटर समझ में आ जाता है, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में देखने से उसको समझ में आ जाता है, तो एग्जीक्यूशन भी इमीडिएटली हो जाएगा। So this is the difference between compiler and interpreter, and which one is faster? Compiler is faster compared to interpreter. Okay, ये assembler क्या काम करता है? What is the job of this assembler? Assembler, what it does, it translates assembly language program। वही मेरा 8085 और 8086 प्रोग्राम्स जो होता है, वो प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए we will be using assembler। So output of all the three, the output of all the three is machine language। okay, मशीन लैंग्वेज होता है किसका? आउटपुट तीनों का मशीन लैंग्वेज है। देयर इज ए डिफरेंस ओनली इन इनपुट। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में इनपुट क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबलर में इनपुट क्या है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो Sir, आई I have होप a नाउ doubt. यू अंडरस्टूड। Sir, बताओ, I have a doubt. पूछो। सर जो कंपाइलर होता है वो तो एक ही बार ट्रांसलेट कर दिया सबको, फिर एग्जीक्यूशन जो करता है उसमें भी हाँ लग जाएगा इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में। हाँ, ऐसा, बट यू हैव टू कंसिडर बोथ। दोनों काम करने के लिए कितना समय होगा? ट्रांसलेशन के एग्जीक्यूशन करने के लिए दोनों टाइम आप लेना पड़ेगा। समझ गया ना? पाइथन जो भी पाइथन में प्रोग्राम्स किए हो, सी, आप और एक पूछ सकते थे यहाँ। आई हैड एक्सपेक्टेड ए डिफरेंट क्वेश्चन। सर, मैं सी प्रोग्राम फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर फ्यू हाई लेवल लैंग्वेजेस वी हैव कंपाइलर्स ओनली। कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए हमको कंपाइलर्स ही डिजाइन हुआ है, एंड फॉर फ्यू हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स देयर आर इंटरप्रेटर्स ओनली। तो फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज के लिए वी डोंट हैव इंटरप्रेटर्स, we have only compilers। For Python
we don't have compilers, we have interpreters only. So we don't have any choice like that. Okay, for few high-level languages, they have designed compilers, and for few high-level languages, they have designed interpreters. So always compiler is faster compared to interpreter. Okay, यहाँ ट्रांसलेशन का समय और एग्जीक्यूशन का समय दोनों मिलाना पड़ेगा. तो पानी का एग्जाम्पल, पानी लाना है तो हर बार जाना पड़ेगा राज, और उनका दोस्त एक ही बार जा रहा है. So who is faster? Definitely Raj's friend is faster compared to Raj. Okay, so this is regarding translators. Let me go to the next slide. I'm not able to move this. Something happened, I guess. Actually, you have clicked on annotate option. That's why. Just uncheck the annotate option. वो कहाँ से ये annotate कहाँ से करते हैं सर? ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे एक फ्लोटिंग पैनल होगा, उस पे आपको अनचेक करना होगा एनोटेट वाले को, फिर आप उसको स्लाइड्स को आगे बढ़ा पाएंगे. सर सिर्फ annotation दिखा रहा है. ये annotation को निकालना है तो क्या करना है सर? पता नहीं चल रहा है. आ गया. ओके, यस, थैंक यू सर. Now, next important thing that you should know, any computer science student must know, is what do you mean by a syntax? What syntax and semantics? These are the two terms that you should know being computer science students. Syntax is nothing but grammar. हर एक लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है. हिंदी यूज करने के लिए व्याकरण आपको जानना जरूरी है ना? इंग्लिश आप ठीक से यूज करने के लिए यू नीड टू नो द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज. हर एक लैंग्वेज का एक डिफरेंट ग्रामर होता है. लाइकवाइज हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेपरेट ग्रामर होता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर को हम वी कॉल इट एज सिंटैक्स. ओके, नॉर्मल लैंग्वेज है तो ग्रामर हम बोलते हैं. If it is a programming language, the grammar of that language we refer to as syntax. Say for example, okay, here I have used the statement simple interest. SI is equal to P into T into R, principal into time into rate of interest divided by 100. This is the formula that is used to compute the simple interest, right? So most majority of the programming languages में हम we will be writing the majority of the programming languages. Every statement is terminated by what is called as a semicolon. जैसा हर एक इंग्लिश सेंटेंस को हम फुल स्टॉप डाल के हम एंड करेंगे, वैसा ही most of the majority of the high level languages such as C, C++, Java, ये तीनों language में हम we will be writing is semicolon at the end. So as per the syntax मतलब grammar, every statement of a C language program or a C++ program or a Java program must be terminated by what is called as a semicolon. Okay, so this is called as syntax. Okay, semantics. A semantics बोला तो ये देखो, ये I have used proper grammar here. Okay, proper grammar and proper statement I have used first case. In the second case, what am I doing is, in the second case, instead of asterisk, I am using slash.
Okay, you can see here, instead of asterisk, instead of slash, I am using asterisk here. When I compile the program, what will happen? कोई बता सकते हो? मैं ये स्टेटमेंट को लिख दिया हूं गलती से, r/100 लिखने के सिवा r/100 लिख दिया। कंपाइल जब करता हूं तो क्या होगा? The program will run. नेहा बताइए। Sir, the program will run. एरर आएगा क्या? ऑप्शंस में 4 ऑप्शन देता हूं। लिसन टू ऑप्शंस। ऑप्शन ए, Yes, sir. ऑप्शन ए एरर, ऑप्शन बी वार्निंग, ऑप्शन सी either error or warning, option C either A or B, option D neither A nor B. Sir, neither error nor warning. Error. एक मिनट, पहला ऑप्शन सर एरर, एरर शो करेगा सर, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, दूसरा ऑप्शन वार्निंग, तीसरा ऑप्शन, ये दोनों जो रिस्क लेना है, पीपल हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, उनके लिए ऑप्शन सी रखा हूं। either A or B is option C, neither A nor B is option D. Sir, ऑप्शन the डी इज answer करेक्ट। will be D. B. लोग Because एरर the बताए। compiler do not detect grammar error. ये कंपाइलर, मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ। Assume I request your English teacher. I guess your English teacher is a lady teacher. हमें मैम ही बताते हैं ना, आपको इंग्लिश बताया था ना? You have English subject? Yes, sir. We had. Okay. Who taught you English? It should be a man. We will. Was it taught by a sir or a madam? Sir, both. In first time we and were madam taught both. by a sir, and in second we were taught by a lady teacher. Okay. But majority of the times, English teachers are lady teachers. Okay. Ma'ams. Okay. So, here I would like to give that example. Assume I am conducting a surprise test for you. मैं एक सरप्राइज टेस्ट आपको कंडक्ट करता हूँ, ठीक है? You know when will the teachers conduct सरप्राइज टेस्ट कब कंडक्ट करते हैं पता है आपको? मैं एक आपको राज बताऊंगा आज। जब भी एक टीचर आके आपको सरप्राइज टेस्ट दे देगा, ओके, वो एक राज, पीछे जो राज है वो बताऊंगा मैं भी यूज कर रहा था पहले। When I joined as a lecturer about 20 years ago, मेरा प्रिपरेशन जो होता था वो मैं 1 घंटा में उसको खींच सकता हूँ सोच के मैं कुछ प्रिपेयर होके जाता था, बट इट यूज्ड टू गेट ओवर विद इन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। बाकी का टाइम क्या करना है मुझे, 40 मिनट्स क्या करना है मुझे, सो मुझे पता नहीं चलता था। तो बाद में मुझे मैं प्लान के क्या कर रहा था, I used to announce, yes, start writing a test now, बता के मैं, क्योंकि ऐसा ही छोड़ दिया तो you people will not keep quiet, so you keep talking, so I want you to be under control. So what I can do is I can give a test, okay? If you do not know, at least you cannot talk, you will be either writing or you will be sitting simply, correct? So whenever a teacher, because I used to do that way, okay, majority of the times teachers have to follow these kinds of tricks, okay, in order to keep the under control, okay? So मैं I will give a surprise test for you. मैं आज आपको एक सरप्राइज टेस्ट दे दिया, सोचो, समझ लो, आप लिख देंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछा था, what is a high level language was my question, 2 marks के लिए what is a high level language बोल के मैं एक क्वेश्चन पूछा था। सो आप लोग, ओके, राज भैया लिखा था high level language is good,
हाई लेवल लैंग्वेज इज गुड, H कैपिटल में लिखा था और फुल स्टॉप लिखा था लास्ट में। दूसरा पॉइंट राज भैया लिखा था हाई लेवल लैंग्वेज इज एक्सलेंट। ओके, फिर से वो H कैपिटल में लिखा था और फुल स्टॉप लास्ट में लिखा था। ये 2 पॉइंट लिखा था राज भाई। ओके, सो मैं okay assume I did not want to correct your papers. I requested your English teacher, your English madam to to do the valuation. मैं आपके इंग्लिश टीचर से पूछा कि मैडम आप प्लीज कृपया ये पेपर्स को करेक्ट करके दे दीजिए, पूछा मैं। तो मैडम ओके, सो मैडम व्हाट मैडम विल नो, सी लैंग्वेज तो मैडम को पता नहीं रहेगा, सो मैडम विल नो ओनली इंग्लिश, करेक्टा? तो राज भैया को 2 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट युवर मैडम विल लुक एट इज ओनली ग्रामर। ग्रामर ही सिर्फ मैडम देखेगी, सिर्फ ग्रामर। वो कैपिटल लेटर से सेंटेंस बिगिन हो रहा है क्या, देयर इज देयर ए फुल स्टॉप एट द एंड, दिस इज व्हाट ओके युवर मैडम विल लुक एट। सो राज भैया को 2 मार्क मिल जाएगा उस आंसर को। हाई लेवल लैंग्वेज इज गुड, फुल स्टॉप, हाई लेवल लैंग्वेज इज एक्सलेंट, फुल स्टॉप। इवन फॉर दीज 2 पॉइंट्स राज भैया को 2 मार्क। कंपाइलर इज लाइक योर इंग्लिश टीचर। कंपाइलर कैसा है? कंपाइलर इज लाइक योर इंग्लिश टीचर। So compiler looks only at the grammar. Okay, it doesn't know anything. See here, whether you are writing your answer as SI is equal to P into T into R by 100 or P into T into R slash 100 लिखा है या into 100 लिखा है, okay, वो कंपाइलर देखता कुछ नहीं है। Okay, it will just see whether you are terminating the statement with a semicolon. यहाँ भी semicolon है, यहाँ भी semicolon है, उसको सिर्फ फर्क है, it is just bothered only about what? It is just bothered only about the grammar or the syntax. So meaning of the statement it is not bothered. So compiler meaning of the statement के बारे में सोचते नहीं है। So that meaning is called as semantics. See, ये semantics ये लाइन में मैं जो लिखा हूँ सेकेंड लाइन, SI is equal to P into T into R into 100. I have written a wrong statement using correct grammar. Like your Raj has written a wrong answer but using the correct grammar. Okay, so compiler is not does not have the intelligence to detect these kinds of errors. So compilation आप जब करते हो तब आपको सिर्फ एक तरह का errors I mean पता चलेगा। What kinds of errors can be detected by the compiler? Compiler detects only what types of errors? Syntactical errors or grammatical errors. Only grammatical errors or syntactical errors are detected by the compiler. Okay, meaning is nothing but semantics. वो ठीक से लिखा है या नहीं है, that is called as semantics. So in this example, okay, syntax is perfect. Second line में syntax तो पक्का है, but what is missing here? Semantics of this line is wrong. Okay, so compiler can detect only what type of errors? Syntactical or grammatical errors can be detected by the compiler. Okay, so now let us look at efficiency of the algorithms. What do you mean by yeah? Sir, could you please elaborate the term SI? I didn't get this. SI. Which term? Simple interest. SI. हाँ, क्या करना है मुझे? Elaborate कर दीजिए इसे। क्या elaborate करना है? वो मैं for example मैं SI लिखा हूँ। Okay, 1 second. हाँ, इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया? SI is equal to P into T into R by 100. वो मैथमेटिक्स में आप तो पढ़ा है ना? Yes sir, it is formula है। कंप्यूटर में क्या यूज है? ये फॉर्मूला है। क्या भाई? सर
इसका कंप्यूटर में क्या यूज है ये मतलब नहीं समझ पा रहा मतलब मैं बताया हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछा हूँ एक प्रोग्राम लिखो टू डिटरमाइन द सिंपल इंटरेस्ट लिखने के पता लगाने के लिए प्रोग्राम लिखो बोला हूँ। आप लिखना था ऐसा, यू वर सपोज टू राइट द स्टेटमेंट लाइक दिस, मगर आपने लिखा ऐसा। सेकंड यहाँ सेकंड स्टेटमेंट जैसा लिखा, तो कंपाइल जब होगा प्रोग्राम, कंपाइलर को ये गलत पता नहीं चलेगा, समझ गए? यस यस इफ आई सपोज, गेट दिस अभी समझ में आया क्या आपको? यस यस इट जस्ट एग्जांपल आई अंडरस्टैंड वो प्रोग्राम, हाँ ये सिर्फ एग्जांपल है। यस यस मैं प्रोग्राम आपको लिखने के लिए बताया था सिंपल इंटरेस्ट पता लगाने के लिए। आपने लिखना चाहिए था ऐसा, फर्स्ट लाइन जैसा, बट यू रोट इट दिस वे। कंपाइलर को पता नहीं चलेगा, वो पास कर देगा, सक्सेस पर्सन की दे देगा आपको। आप बाद में जब इसको रन करेंगे तब आपको आंसर ठीक से नहीं मिलेगा। सच एरर्स आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। एरर्स को हम क्या बताते हैं? लॉजिकल एरर्स बताते हैं। लॉजिकल एरर्स कब आएगा? जब सेमांटिक्स आर रॉन्ग। जब सेमांटिक्स आर रॉन्ग यू गेट लॉजिकल एरर्स। जब सेमांटिक्स आर परफेक्ट, सोचो आप यहाँ फर्स्ट लाइन में सेमीकोलन भूल गया, सोचो यहाँ फर्स्ट लाइन में सेमीकोलन भूल गया, सोचो यहाँ तो आप सेमांटिक्स तो ठीक है बट सिंटैक्स में गलत है। ऐसा गलत आप सेमीकोलन को भूल गया तो कंपाइलर पकड़ लेगा आपको। लाइन नंबर 10 ओके, सेमीकोलन मिसिंग, it will start giving that particular message to you, समझ गया ना? सो आपका सही आउटपुट निकलना है तो कंप्यूटर से, सी कंप्यूटर इज कॉल्ड गीगो डिवाइस, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जो देते हो वही आपको आउटपुट निकलेगा। गार्बेज देते हो मतलब कचरा देते हो तो आपको कचरा ही निकलेगा कंप्यूटर से। सो इज कॉल्ड गीगो डिवाइस, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम कंप्यूटर में वो प्रोग्राम जब करते हैं तब ये सभी चीज हम ध्यान में रखना चाहिए। सो सेमांटिक्स का मतलब क्या है? मीनिंग। सिंटैक्स का मतलब क्या है? ग्रामर, व्याकरण को कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बताते हैं? सिंटैक्स। तो कंपाइलर कैन डिटेक्ट ओनली विच टाइप ऑफ एरर्स। सिंटैक्स में गलत होने से ही पता लगा सकता है। इफ देयर इज अ मिस्टेक इन द मीनिंग इट कैनॉट डिटेक्ट। तो कंपाइलर ये दूसरा लाइन मैं देता हूं, तो यहाँ एग्जांपल में दिखा रहा हूं ना, इफ सपोज आई गिव दिस सेकेंड लाइन, कंपाइलर कैनॉट डिटेक्ट दिस एरर, वो पास कर देगा आपको, बट आपको सही आउटपुट नहीं निकलेगा, गार्बेज आउटपुट निकलेगा। Yes, समझ गया ना? So now can I move on to my next slide? Yes, sir. Okay. Now let us look at efficiency of algorithm. What do you mean by efficiency? जो मैं एक प्रोग्राम लिखा हूं, वो प्रोग्राम कम समय में रन होना चाहिए और कम स्पेस लेना चाहिए। The total amount of time required by a program to run to its completion, वो एक प्रोग्राम मैं जो चुना हूं लिखा हूं, वो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होने तक कितना टाइम लेता है, वो टाइम, that time we refer to as time complexity. ओके, एंड वो प्रोग्राम कंप्यूटर रैम में, मेन मेमोरी में, रैम में कितना स्पेस लेता है, that we refer to as space complexity. See, these are the two factors that we have to look at measuring the performance of a computer, of a program or an algorithm. Okay, हम आप for example, आप एक शर्ट खरीदना चाहते हो. Okay, what are the things that you look at while purchasing a shirt? शर्ट लेने समय क्या क्या आप देखेंगे? आपको पहले पसंद आना चाहिए, कलर पसंद आना चाहिए, फिटिंग पसंद आना चाहिए और आपका दाम भी ओके कम होना चाहिए।
है ना. These are the factors that you see to decide whether the shirt is good or bad. करेक्ट. वैसा ही एक जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो प्रोग्राम अच्छा है या नहीं अच्छा नहीं है वो बताने के लिए you should have some metrics to measure the performance. So those two metrics are time complexity, मतलब कितना टाइम समय लेगा वो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूशन होके आउटपुट देने के लिए. So that is called as time complexity. How much RAM space is needed by the program to run to its completion, that is called as space complexity. So ये दोनों कम होना चाहिए. See, second one we can forget. See, पहले in the earlier days, okay, in the first generation, second generation computer, few bytes of RAM only was available. तब okay, पहले first generation computer में या second generation computer में only few bytes of RAM size, few bytes होता था. तो therefore time complexity was important then. Abhi okay, we have several GBs of RAM space now. Few GBs, 4 GB, 8 GB RAM, okay, 16 GB RAM. We have okay RAMs of larger sizes available today. So we don't care for the space complexity. Space complexity तो we need not have to bother, but we have to bother about the time complexity. Time complexity का मतलब क्या है? मैं जो see to do a single job, for example, multiplication मैं करना चाहता हूँ. Multiplication can be done in आपका मैथ्स टीचर आपको 2-3 तरीका बताया होगा multiplication कैसा करना है. So तरीका 1 that is called algorithm 1. तरीका 2 that is called as algorithm 2. सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स को सॉल्व करने के लिए ओके एक बंदा एक एल्गोरिथम चुना है, दूसरा बंदा दूसरा एल्गोरिथम चुना है, दोनों काम एक ही कर रहा है, बट ओके देयर कॉम्प्लेक्सिटी विल डिसाइड व्हिच वन इज गुड. कम समय एल्गोरिथम 1 ले रहा है तो दिस इज बेहतर देन द सेकंड वन. ओके, so we will measure the efficiency of an algorithm through which one? Through the time complexity. जो वो कम समय लेना चाहिए. इसको मैं समझाने के लिए I will take one simple example. Let me come to this example. I will not teach you program C या Java, वो अभी बताता नहीं. Generally मैं ये ले रहा हूँ. You know what is a prime number? Prime number क्या होता है? ये नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो एक से होता है और उसी नंबर से जो होता है वो नंबर को मैं प्राइम नंबर बता सकता हूँ. आई कैन नॉट कॉल एनी अदर नंबर्स एज प्राइम नंबर्स. ओके, मैं अभी कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए बताया हूँ आप लोगों को. क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है बताओ भाई, मैं आपको पूछता हूँ. तो आप एक प्रोग्राम लिखते हो. सोचो you are following logic 1. आपको अभी आप देख सकते हो ना लॉजिक 1. सो ये लॉजिक 1 में क्या है, मैं 19 को पहले डिवाइड करूंगा. 1 से नहीं करना है, 19 नहीं करना है, वो 2 नंबर को छोड़ दो. उसी नंबर को मैं प्राइम नंबर बता सकता हूँ. जो नंबर 1 से और 19 से छोड़ के दूसरा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तभी मैं वो 19 को मैं प्राइम बता सकता हूँ, है ना. ये देखो मैं पहले क्या देखता हूँ, पहले 2 से डिवाइड करता हूँ, उसका आंसर 0 आएगा क्या? नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 0. सिर्फ एक डिवीजन करके हाँ 19 इज ए प्राइम नंबर बता सकता हूँ क्या? नहीं, आई हैव टू डू द नेक्स्ट डिवीजन. 19 शुड बी डिवाइडेड बाय 3. ओके, 3 से डिवाइड होगा क्या 19? नहीं. सो मैं सिर्फ ये 2 डिवीजन करके छोड़ नहीं सकता हूँ, नेक्स्ट डिवीजन में जाना है. इज 19 डिविजिबल बाय 4? आई विल चेक 5, 6, 7. ऐसा मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? आई विल गो अप टू 18. आई विल गो अप 18 तक जा रहा हूँ. 2 से लेकर पहले 2 से डिवाइड करूंगा, बाद में 3 से डिवाइड करूंगा, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो टोटली अराउंड 17 डिविजन्स आई हैव टू डू. कितना चाहिए मुझे? 17 डिविजन्स में करना चाहिए, है ना, टू टेल दैट 19
प्राइम ही है बताने के लिए ये फर्स्ट लॉजिक 1 में फॉलो करता हूं तो आई नीड, दिस इज एल्गोरिथम 1, फर्स्ट एल्गोरिथम में फॉलो करता हूं तो उसके लिए कितना डिविजन्स करना चाहिए? 17 डिविजन्स करना चाहिए। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉजिक 1 इज मोर। हर एक डिवीजन करने के लिए कंप्यूटर तो कुछ समय लेना पड़ेगा, 17 डिवीजन करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेगा ही कंप्यूटर, है ना। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉजिक 1 इज मोर। सेकंड, दूसरा लॉजिक में आओ, मैं पहले 2 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, ऐसा कहां तक जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टिल वेयर, देखो लास्ट टिल वेयर आई एम गोइंग। सेकंड लॉजिक में लास्ट नंबर कौन सी है? 9 सर। 9 है। हाँ 9, मतलब 2 से 9 तक कितना है? अराउंड 8 डिविजन आर देयर, करेक्ट? कितना डिविजन? 8 डिवीजन। विच वन इज बेटर? मैं सिर्फ 8 डिविजन्स में बता सकता हूं कि 19 इज ए प्राइम नंबर बताने के लिए सिर्फ मैं कितना डिवीजन, ये सेकंड लॉजिक में फॉलो होता हूं तो आई नीड ओनली 8 डिविजन। सो विच ऑफ देम इज बेटर? ये दोनों में से कौन सी बेटर है? लॉजिक 2। लॉजिक 2 इज बेटर, क्योंकि n/2 तक जा रहा हूं। n/2 बोला तो 19 डिवाइडेड बाय 2 बोला तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्ट? सॉरी 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 19 डिवाइडेड बाय 2 इज 9 पॉइंट समथिंग, छोड़ दो, 9 तक आप जाओ। सो विद इन 8 डिविजन, सिर्फ हम 8 डिविजन करके बता सकते हैं कि दैट नंबर इज प्राइम। सो whereas the first logic if I am following, so जो मैं पहला लॉजिक फॉलो कर रहा हूं तो मुझे 17 डिविजन्स चाहिए। दूसरा लॉजिक में फॉलो करता हूं तो मुझे चाहिए सिर्फ 8 डिविजन्स। ओके, उस नंबर को पता लगाने के लिए। और एक तीसरा भी है, देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ लॉजिक हेयरिन। ओके, लास्ट नंबर देखो मैं कहां तक जा रहा हूं। लास्ट नंबर देखो 3 में कहां तक गया हूं मैं? 4। सो मतलब आई एम गोइंग टिल स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। 19 का स्क्वायर रूट आप डालो। सी, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। 4 और 5 के बीच में रहना चाहिए, है ना। 4 पॉइंट समथिंग। स्क्वायर रूट ऑफ 19 इज हाउ मच? 4 पॉइंट समथिंग, है ना। यस सर। तो मैं यहाँ n डिवाइडेड बाय 2 तक जाता था सेकेंड लॉजिक में। थर्ड लॉजिक में मैं क्या करता हूँ? आई विल गो अप टू स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। वो नंबर n इज 19। 19 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 पॉइंट समथिंग। पॉइंट समथिंग को आप छोड़ दो, 4 ले लो। 4 पॉइंट समथिंग में पॉइंट समथिंग को छोड़ दो, सिर्फ 4 ले लो। सो यू आर गोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम 2, you are starting from 2, next 3, then you are going up to where? Up to 4. How many divisions you are doing? How many divisions you are doing? 3 सर, 3। यहाँ कितना divisions ले रहे हो भाई? 3 Just 3। सिर्फ 3 डिवीजन में मैं बता सकता हूँ कि 19 is a prime number. So इन तीनों में से which is the best logic? लॉजिक 3 इज बेटर। Logic 3 is best. Okay. तो आपको मैं प्राइम नंबर और नॉट प्रोग्राम आपको लिखने के लिए बताया, तो आप यू कैन गेट द रिजल्ट। ये लॉजिक 1 लेने से भी आपको रिजल्ट निकलेगा, लॉजिक 2 लेने से भी आपको रिजल्ट निकलेगा, लॉजिक 3 लेने से भी आपको रिजल्ट निकलेगा। बट ओके, रिजल्ट हर तीनों में आपको रिजल्ट सेम ही आएगा। 19 इज ए प्राइम नंबर, 19 इज ए प्राइम नंबर, 19 इज ए प्राइम नंबर बोल के बताएगा। तीनों में आउटपुट सेम है। बट इन तीनों में से विच इज द बेस्ट लॉजिक? लॉजिक 3 इज द बेस्ट लॉजिक। तो आपको कोडिंग करने के समय, आप प्रोग्राम जब लिखने को जाएंगे, तब ये सभी चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। सिर्फ आउटपुट दे देना आपका फाइनल गोल नहीं रहना चाहिए।
You have to think of all these aspects. तो सोचो ये 19 बहुत छोटा नंबर है, मैं सोचो एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया 17437 नंबर प्राइम है या नहीं है बताने के लिए आपको ओके बताया मैं 17937 वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट बताओ भाई बोलता हूँ। सोचो आप फर्स्ट लॉजिक जा रहे हो तो यू हैव टू डू अराउंड ओके 17,000 सम नंबर ऑफ डिविजन्स पता करना पड़ेगा आपको। ये दूसरा लॉजिक में गया तो 8,000 डिविजन्स यू हैव टू डू। ओके थर्ड लॉजिक आप गया तो ओके स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर अराउंड 4,000 डिविजन्स ओनली यू हैव टू डू। सो ऑलवेज सी फॉर ए स्मॉलर नंबर आपको प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर ट्राइंग टू यूज ए वेरी लार्ज इनपुट जब ले रहे हो एंड देन ओके द कंप्यूटर आपके पास चाहे जितना भी स्पीड वाला आपके पास कंप्यूटर हो फिर भी आपके okay because of the algorithm because of the wrong logic that you have chosen to write your program your computer will suffer. Okay so you have to always therefore look at शर्ट खरीदने जाते हो तो आप सब चीज को ध्यान में रखते हुए खरीदते हो ना, ऐसा ही प्रोग्राम आप जब लिखने जाएंगे तब आपको क्या देखना जरूरी है, what is it necessary that you have to check? You have to check at what? Time complexity and space complexity. Space complexity may be ignored. छोड़ो स्पेस का बात आप ध्यान में रखने का ओके ये जरूरत ही नहीं है। You have to look at what is very important for you. Time complexity is very important. So that is okay. So I hope I have now reached the end of my session. I hope I have made you understand at least थोड़ा बहुत आपको समझाने का कोशिश तो मैं किया हूँ आज के क्लास में। So do you have any questions? Do you have any questions? Let me check a chart. Sir, I can write assembly language. हाँ मगर आपको असेंबली लैंग्वेज जानना जरूरी है। हाँ you can write. यूज करने के लिए क्या भाई? How do I know sir assembly language? हाँ या आप क्या करना पड़ेगा, हर एक असेंबली लैंग्वेज 8086 बताया तो आप इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 बोल के आप गूगल मारो, आपका 100 या 150 इंस्ट्रक्शंस है। आप प्रोग्राम लिखना है तो वो इंस्ट्रक्शन सेट से इंस्ट्रक्शंस को चुन के आप प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इसी कारण ये प्रोग्राम दूसरे प्रोसेसर में रन करना है तो ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा क्योंकि वो दूसरा प्रोसेसर का दूसरा इंस्ट्रक्शन सेट होता है। सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में भी कॉमन, ओनली कुछ इंस्ट्रक्शंस दोनों प्रोसेसर का कुछ इंस्ट्रक्शंस ही सेम हो सकता है बट ऑल अदर इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट। तो वो दूसरा प्रोसेसर आपके ये इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं सकता है। इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट, इसीलिए मैंने बताया। ओके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर हार्डवेयर मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब ओके आपके पास जो भी कंप्यूटर हो, इसका जो भी प्रोसेसर हो इसके पास और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी हो, प्रोग्राम हर कंप्यूटर में आपको आउटपुट मिलेगा। कब आपके पास आप प्रोग्राम्स जब किस लैंग्वेज में लिखा है तो हाई लेवल लैंग्वेज में, when you have written a program, okay, the program can be executed on any system that has any hardware. Okay, इसी सिस्टम में Sir, I have जो भी one more हार्डवेयर question, है, sir. बताओ भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मशीन लैंग्वेज के लिए केवल 2 डिजिट ही चाहिए ना सर, 0 और 1? मशीन लैंग्वेज के लिए केवल 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है सर, या फिर 9 डिजिट में से किसी का भी यूज कर सकते हैं हम? मशीन लैंग्वेज में जीरोस एंड वंस में आप लिखना पड़ेगा। हाँ यानी कि 2 ही डिजिट में हमको यूज करना होगा मशीन लैंग्वेज के लिए ना? मतलब सिर्फ 0 1 लिखने से नहीं,
आप इतना सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी SI में प्रोग्राम दिखाया ना, वो ये यहाँ है ना, SI इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R स्लैश 100, ये लिखने के लिए आपको 50-60 जीरोस एंड वंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो आप देने से उसको पता चलेगा कंप्यूटर को, ओहो ये तो सर SI हमको इज इक्वल सर हम कैसे जानेंगे सर कि हमारा पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ है 0 और 1? वो कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे सर कि हम ऑर्डर में लिखे हैं या आप नहीं? फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है भाई। देखो भाई, आप मशीन लैंग्वेज को जानने का, वो मशीन जो समझ पाता है वो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। आप जो समझना चाहिए वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको समझना है सिर्फ, आप वो उसके बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है। आपका हाल और भी खराब हो जाएगा इफ यू आर आस्क्ड टू राइट प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन लैंग्वेज। मैं आपको बताया तो आपका बहुत बुरे हाल हो जाएगा। तो इंस्टेड आपको आसानी से क्या करना है, सिर्फ क्या करना है आपको, एक इधर हाई लेवल लैंग्वेज सीख लो या असेंबली लैंग्वेज सीखो, ये दोनों के साथ ओके आप प्रोग्राम्स लिख लो। हम why do we use ये कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर है ना हमारे लिए, ये वो मशीन लैंग्वेज में समझाने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए वी विल बी यूजिंग कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर। आप आसानी से प्रोग्राम लिखने, बताओ सर। जब हमारा कंपाइलर काम कर ही दे रहा है सर इंटरप्रेटर से बढ़िया, तो हम इंटरप्रेटर को क्यों यूज करते हैं सर? सिर्फ कंपाइलर को यूज करना चाहिए ना सर। या आई अंडरस्टूड। मैं बताया ना कि कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के लिए वो लोग को ही am I audible? हेलो? नो सर आवाज नहीं आ रही है सर आपका। यस सर यू आर ऑडिबल। अभी आ रहा है ना? अभी आ रहा है सर। कभी कभी ऐसा होता है, सिग्नल ड्रॉप होता है। ओके यस सर। देखो भाई, कुछ लैंग्वेजेस के लिए वो लोग दे हैव डिजाइन्ड ओनली कंपाइलर्स डिजाइन किया है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर फिर से आपका आवाज कट रहा है सर, आवाज नहीं आ पा रही है। यू आर नॉट ऑडिबल। प्रॉब्लम आ रहा है भाई। हेलो? यस सर। हेलो? यस सर। हेलो? हेलो? Yes, sir. Actually, they have designed compilers for few languages, interpreters for few languages. ये हमारे बस की बात नहीं है। जो है अवेलेबल है उसको हम यूज कर रहे हैं। मतलब सी के लिए हम इंटरप्रेटर यूज नहीं कर सकते हैं, पाइथन के लिए कंपाइलर यूज नहीं कर सकते हैं। जो डिजाइन होके छोड़ा है ओके बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज, वो लोग डिजाइन सी पाइथन के लिए इंटरप्रेटर ही बेहतर है, सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर ही बेहतर है। इसीलिए बेस्ड ऑन दैट दे हैव डिजाइन्ड। वी डोंट हैव द फ्रीडम ऑफ चूजिंग व्हाटएवर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट वी वांट। ओके they are system dependent. राइट। हेलो? हेलो? क्या? यस सर। यस सर क्लियर हो गया सर। यस सर। ओके एनीथिंग एल्स? नो सर तो कुछ नहीं। सो You may end this मेलोडियस, session. मेरा वॉइस बहुत मेलोडियस महसूस हो रहे हो क्या आप लोग? सो गए क्या? नो सर। No नो sir. सर नो सर इंटरेस्टिंग है सर। मेरा आवाज No, इतना no. मेरा आवाज इतना सुकून नहीं है क्या? नहीं सर ऐसा बात नहीं। नहीं सर बिल्कुल बात सर। ओके ओके बाय, थैंक यू वेरी मच। Any more questions from participants? वन सेकेंड, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। ओके दिस इज माय चैनल प्रोग्रामिंग विथ निरंजन। I will just click on this link
I will share this slide with you now. Okay, I'm just clicking on this because I'm using mobile data. It is taking, and there is a Facebook page also. My fan page is there with the same name, Niranjan A. You may reach me either or through this particular link. Or if I can teach any other topics, I will decide and I will discuss with Imran sir and teach. Okay. Next few days I am very busy. Actually, now I have come from Vijayawada to Bangalore to for the submission of thesis. So my thesis got submitted. In another 2-3 days, I am. Okay, sir. Okay. Can I end my session now? Thank you, sir. Thank you, sir. You may. Yes, sir. Thank you so much, sir, for this wonderful session. Thank you. Thank you. Thank God you bless so you. much, sir. Wish you all the very best. Out of your busy schedule. God bless you. Thank you, sir. God bless you all. Thank you very much for your patience Once again, thanks, sir. listening. Hello, sir. बताओ बोल भाई. Could I see you soon? You Sir. not able to hear you. YouTube? No, sir. See you soon. Session. समझ में नहीं आया. He's asking whether you will be able to join us anytime soon, like for some another session or something like that. मैं बताता हूँ, but I am bit बाद में मैं जरूर इमरान सर से बात करके दूसरा एक सेशन हम कर लेंगे. ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. All the very best. God bless you all. Thank you. Yes, sir. I'm too pleased. Thanks for making this webinar successful. I'm ending this meeting now. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. I am Thank you Imran very sir much. speaking. Thank you, sir, Diyan sir. I will contact you very soon for other session. And this time I will try to concentrate on latest version of software and on the latest topic like big data or IoT. And now just I had tried to give the basic knowledge. Actually, my Okay, sir, research topic is data mining. I can discuss about my research project also. My PhD research work also I can discuss in my next few sessions. Okay. Okay, we will talk. We will give time for that, sir. And when you are free, we will contact you. And it's very thankful from the behalf of Government Polytechnic Bhagalpur. We are giving you thanks, and we are wishing you all the best for your life and successful life in this career. Okay, sir. Thank you. We are ending this session. Thank you, sir. Thank you, sir.